welcome or welcome back to my channel. My name is Tresia, and if you guys are watching me for the first time, please consider subscribing to my channel because I keep making videos related to cabin crew. If you are a cabin crew aspirant, I will suggest you to please go to my previous videos and do watch them because title thumbnail देख के obviously पता चला होगा that we are going to talk about how to become a cabin crew after completing your 12th grade. Okay, यानी कि 12th grade complete हो जाने के बाद how to pursue your dream job. Okay. सो इस वीडियो में बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, कैसे आप आपकी कम्युनिकेशन, इंग्लिश, ओके, ग्रूमिंग को सुधार सकते हो उसके बारे में बात करेंगे एंड डेफिनेटली सम टिप्स टू क्रैक योर इंटरव्यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है टू ऑल द यंग cabin crew aspirant जिनको आइडिया नहीं है इस बैकग्राउंड के बारे में. ओके, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड यू नो किसी भी कैबिन क्रू इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आइडिया मिलेगा कि मुझे करना चाहिए या नहीं चाहिए. सो डेफिनेटली कीप वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सजेस्ट यू गेट अ नोटपैड एंड अ पेन. सो आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको लगे वो लिखते जा सकते हो बिकॉज इन्फॉर्मेशन बहुत सारा देने वाली हूँ आज इस वीडियो में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So before we start with the video, with the actual content, actual information that I am going to provide you in this video, उससे पहले I will like to take you through the duties of cabin crew. Cabin crew exactly क्या होते हैं and what you are supposed to exactly do in this job. So first of all, you are an ambassador of the airline. Okay, you are representing that airline, and this job is customer facing. That means you have to interact with the customers. Okay, so basic duties that a cabin crew are supposed to perform is helping the passengers in boarding, demonstrating safety, ensuring the safety of the passengers. Okay, most important duty of cabin crew. Serving the meals. Okay, so these are the basic duties of cabin crew. बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे दैट मेक्स यू एलिजिबल कैंडिडेट टू गो फॉर इंटरव्यू फॉर दिस जॉब. ओके, सो एज के बारे में बात करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करेंगे. देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट योर फिजिकल फिटनेस सच एज योर height and weight criteria, BMI criteria, and we will also talk about grooming. Okay, so first of all requirement में there is most important criteria for to become a cabin crew, that is your age. Okay, so all the airlines in India they require you to be 18 plus. Okay, आपको 18 years of your age complete करना चाहिए तभी आप फुलफिल कर पाएंगे ये क्राइटेरिया को. ओके, जो अभी 17 है और फ्यू मंथ्स में 18 टर्न होने वाले हैं, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द इंटरव्यू. वो एयरलाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको सिलेक्ट करेंगे या फिर दे विल कीप यू ऑन होल्ड. ओके, सो दैट इज द एज क्राइटेरिया. इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूँ, दे रिक्वायर यू टू बी 21 years of old. ओके, एजुकेशन की मैं बात करूँ, यू शुड बी मिनिमम 12th qualified. You should be completing your 12th grade or equivalent. Okay, so airlines in India such as Air India and Vistara they have certain percentage criteria such as Air India में 55% है and for Vistara they have 60% का 12th का मार्क्स क्राइटेरिया. बेसिकली यू नीड टू फुलफिल, अगर आप इस पर्टिकुलर एयरलाइन में जा रहे हो, एयर इंडिया या फिर विस्तारा, यू शुड हैव 55% to 60% इन योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन योर 12th ग्रेड. अगर नहीं भी है, इस परसेंटेज कम है, यू कैन try other airlines such as Indigo, okay, Akasa, you can go for those airlines. But Air India या फिर विस्तारा का प्लान कर रहे हो, then you should be having 55 to 60% in your 12th grade. अगर कोई 12 से छोटा बच्चा है या फिर 12 बोर्ड्स अभी अपियर करने वाला है और मेरी वीडियो को देख रहा है, आई सजेस्ट यू स्टॉप दिस वीडियो, गो स्टडी एंड गेट गुड मार्क्स, तभी यू विल बी एबल टू फुलफिल योर dream job. Then now coming towards the language and communication वाला criteria, you should be fluent in English. अगर you are applying for domestic airlines,
दे रिक्वायर्ड इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, ओके, ये दोनों लैंग्वेज क्राइटेरिया है। अगर आप यू आर नॉट फ्लुएंट इन दोज लैंग्वेजेस, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ, ओके। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज है, आप उसको देख के यू कैन प्रैक्टिस, ओके। देन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग, बिकॉज रीडिंग करने से भी आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सकती है। यू कैन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विथ योर फ्रेंड्स, ओके, उससे भी आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। Coming towards the BMI वाला criteria, height and weight and your physical fitness वाला criteria, you should be physically fit to fly, okay. Even after cracking the interview, there will be a medical test जिसमें आप physically fit to fly आने चाहिए हो, otherwise फिर भी fit to fly नहीं आए तो फिर आपका इंटरव्यू देने का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली मेडिकली फिट नहीं हो, फिजिकली फिट नहीं हो, तो दे विल रिजेक्ट यू, ओके। एम्प्लॉयमेंट को वो रिजेक्ट कर देंगे। सो फिजिकली फिट होना भी उतना ही ज़रूरी है। यू शुड हैव प्रॉपर लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन। यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा हेमोग्लोबिन के लिए इन डिफरेंट यूट्यूब वीडियोज, बट आई हैव सीन दैट अगर हेमोग्लोबिन कम आए फिर भी दे टेंड टू रिजेक्ट यू और गिव यू सम टाइम टू यू नो कम टू अ प्रॉपर रेंज ऑफ your blood count, okay. Then height, minimum height is 155 centimeters in India for any domestic airline. You need to be at least 155 to 157 ऐसा height criteria रहता है। It varies upon airline to airline. So अगर आप किसी particular airline के लिए try कर रहे हो, please I'll suggest you go to their official website, okay. वहाँ पे सारे criteria दिए होते हैं ऑलरेडी, यू जस्ट नीड टू चेक दैम, ओके। एज क्राइटेरिया दिया होता है, ओके, हाइट क्राइटेरिया, वेट क्राइटेरिया, BMI रेंज कौन सी आपकी होनी चाहिए, सारे क्राइटेरियाज वो वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सो आई सजेस्ट यू गो एंड चेक पर्टिकुलर एयरलाइंस ऑफिशियल वेबसाइट। फॉर वेट दे हैव BMI range which is from 18 to 22 for females. So I will suggest you go for some customer सर्विस इंटर्नशिप बिफोर यू अप्लाई फॉर दिस जॉब, या फिर अप्लाई करते करते ही कहीं पे इंटर्नशिप कर देना, ताकि आपको खुद के लेवल पर अंडरस्टैंडिंग हो जाए दैट आर यू मेंट फॉर दिस जॉब और यू आर नॉट, ओके। ताकि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो, और अगर आपको ये प्रोफेशन नहीं पसंद आ रहा, कस्टमर सर्विस में आपको नहीं हो रहा अच्छे से एडजस्टमेंट, सो यू कैन गो एंड ट्राई सम अदर करियर ऑप्शंस, ओके। नाउ एज यू नो द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू बी अ cabin crew just after 12, let's look at the training process, okay. So after completing your interview and your medicals, you will undergo a proper training provided by that particular airline, okay. इसलिए आपको इससे पहले कोई भी इंस्टीट्यूशन आपके पास से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपने कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करके प्रॉपर ट्रेनिंग लिया भी होगा, फिर भी यू विल हैव टू अंडरगो अ ट्रेनिंग वंस अगेन विच विल बी प्रोवाइडेड बाय द एयरलाइन, ओके। नाउ इस एयरलाइन के लिए देयर इज a kind of security deposit that you have to pay, okay. Around 50,000 होते हैं for most of the airlines in India, but this can vary from one airline to other airline, okay. So इस ट्रेनिंग में आप क्या सीखोगे? So they will basically teach you different safety procedures, okay, emergency protocols, first aid, basic grooming, okay. They will also teach you the basic makeup requirements of that particular airline, okay, जो आपकी grooming class के अंडर आएगा. They will also teach you about the service, okay, service in the sense of serving the food and beverages to the people, okay, जो आपके पैसेंजर्स होंगे उनको सर्व करने के लिए. बहुत सारे ड्रिल्स भी होंगे इस टाइम पे आपके, ओके. सो दिस विल बी द प्रॉपर ट्रेनिंग, एंड इस ट्रेनिंग के बाद यू विल ऑल्सो हैव अ पर्टिकुलर टेस्ट और एग्जाम, ओके, जिसमें आपको असेस करेंगे. एंड अगर आप प्रॉपर मार्क्स ला रहे हो, क्वालिफाई हो रहे हो, तभी यू विल बी फ्लाइंग. अभी लास्ट में हम बात करेंगे, लाइक हमने बेसिक रिक्वायरमेंट देख लिए कि आपको 18 ईयर का होना है, फिर यू हैव टू बी 155 सेंटीमीटर टॉल, यू शुड बी इन BMI रेंज, यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल फॉर डोमेस्टिक एयरलाइंस, ओके. सो ये हो गया आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ओके, जो 12th के बाद यू आर सपोज टू फुलफिल, ओके. और 12th तो आपका बेसिक होना ही चाहिए विद मिनिमम 55 to 60% डिपेंडिंग अपॉन द एयरलाइन, ओके. ये सारे हो गए बेसिक क्राइटेरिया जो हमने देख लिए, और आई अज्यूम कि आपने प्रॉपर्ली इसको नोट भी किया होगा, ओके, आइदर इन योर मोबाइल फोन और
ऑन अ नोट पैड। ओके, आपने नोट किया होगा, आई एज्यूम दैट। ओके, नाउ उसके बाद हमने ट्रेनिंग भी देख लिया कि वंस यू गेट सिलेक्टेड आपका इंटरव्यू होगा। ओके, देन योर मेडिकल टेस्ट होगा। वो सब हो जाने के बाद इफ यू आर फिट टू फ्लाई, मेडिकली फिट टू फ्लाई, यू विल अंडरगो अ प्रॉपर प्रोफेशनल कैबिन क्रू ट्रेनिंग। ओके, और ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद यू विल बी फ्लाइंग, ऑपरेटिंग फ्लाइट्स। ओके, नाउ ये सब तो रिक्वायरमेंट्स एंड सबके बारे में हमें पता चल गया। ओके, एक बैकग्राउंड मिल गया कि कैसे इस जॉब के लिए प्रोसीजर्स होते हैं। नाउ हम देखेंगे कि इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। ओके, जैसे 12th होता है। ओके, 12th कंप्लीट हो जाने के बाद या फिर अगर आप परस्यू कर रहे हो, इफ यू आर परस्यूइंग 12th राइट नाउ, आई सजेस्ट यू टू फोकस ऑन योर board exams because marks are most important thing that you need currently if you are giving your 12th या फिर आप 12th देने वाले हो 1-2 साल में। तो सबसे पहले focus on your 12th, do one thing at a time, don't do multiple things at a time। okay, this will hamper your results। okay, so make sure you are thoroughly studying and preparing for your 12th exam, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर मार्क्स आएंगे। बिकॉज अगर आपका 12th नहीं है, एनी विच वेज दे आर नॉट गोइंग टू हायर यू, सो फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जाम फर्स्ट। ओके, सो जिनका 12th हो चुका है उनके लिए एप्लीकेशन प्रोसीजर बताऊंगी। सबसे पहले यू हैव टू लुक फॉर द वैकेंसीज ओनली ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। ओके, कहीं पे इंस्टाग्राम पे देख लिया या फिर कहीं पे भी यूट्यूब पे देख लिया, क्रॉस चेक दैट विद द ऑफिशियल वेबसाइट कि सच में कोई कैबिन क्रू वैकेंसी आई है या नहीं है। ओके, इफ इट्स रिटर्न दैट इट्स अ वॉक इन इंटरव्यू, दैट मीन्स यू कैन डायरेक्टली गो टू द इंटरव्यू विन। अगर लिखा है दैट यू नीड टू अप्लाई बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, दैट मीन्स यू आर सपोज टू अप्लाई। ओके, फिर बाद में यहाँ वहाँ यूट्यूब देखोगे एंड सारे यूट्यूबर से पूछोगे कि मुझे डायरेक्टली जाना है या अप्लाई करके जाना है। भाई सीरियसली बता दे रही हूँ, अगर वॉक इन लिखा है डायरेक्टली जाओ, कोई किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जाओ। एंड अगर अप्लाई करना लिखा है दैट मीन्स यू आर सपोज टू अप्लाई। ओके, most important thing to carry with you for your interview day is your resume. So start making a proper resume. Okay, proper format में होना चाहिए and highlight your skills, your education. ये सारी जो relevant information है ना, उसको हाईलाइट कर दो, सच एज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर एजुकेशन। 12th को तो हाईलाइट करना ही चाहिए। ओके, देन 12th के अलावा अगर आपने कोई डिग्री या फिर डिप्लोमा किया है तो उसको भी जरूर मेंशन करें। डिफरेंट बैकग्राउंड का भी क्यों ना हो, उसको मेंशन जरूर करना है। इंटर्नशिप्स आपने कौन से किए उसको मेंशन करना है। ओके, अगर कंप्यूटर स्किल्स आप में कोई है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, ओके, ऐसे कोई स्किल्स आप में अगर है तो उसको भी जरूर से हाईलाइट कीजिए। एंड अगर आपने कोई वॉलंटरीली सर्विस प्रोवाइड की है, ओके, सपोज कर लो कोई एनजीओज में या फिर ऐसे किसी कोई भी चीज़ में अगर आपने वॉलंटरीली सपोर्ट किया है उसको भी मेंशन कीजिए। अगर आप फ्रेशर हो, ओके, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है कोई, सो एटलीस्ट मेंशन द प्रोजेक्ट्स, द कल्चरल इवेंट्स दैट यू हैव डन इन योर ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज। ओके, अगर कॉलेज में कहीं आपको अच्छे अचीवमेंट्स के लिए अवार्ड दिया गया हो तो उसको मेंशन कीजिए, बिकॉज एज अ फ्रेशर आप रेज्यूमे में लिखोगे ही क्या। ओके, ब्लैंक तो नहीं रख सकते। सो मेंशन अबाउट द अवार्ड्स दैट यू गॉट ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज और योर स्कूलिंग डेज। ओके, सो ये हो गए हमारे एप्लीकेशन के प्रोसेसेस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर मैं किसी पॉइंट को भूल रही हूँ या फिर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं, फील फ्री टू कमेंट डाउन योर क्वेरीज। ओके, आई विल मेक श्योर आई विल आंसर देम। एंड और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए वो भी मुझे कमेंट में बता देना। आई विल मेक श्योर कि मैं वो वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ।